bit late. So today our lecture is on the topic of reverse engineering tools. As you know that the title of subject is reverse engineering, and there is a very important role of reverse engineering tools in this course. So the main focus of this lecture will be on the discussion on different reverse engineering tools. We will briefly discuss the well-known and famous reverse engineering tools that are being used by different researchers. So I'm going to start with the introduction. That is the first slide. Many reverse engineering tools concentrate on extracting the structure or architecture of a legacy system with the goal of transferring this information into the minds of software engineers trying to maintain or reuse it. You will be clear with this concept that the intent of every reverse engineering tool is to extract information from the legacy codes, and that information should be in the form of design, in the form of architectures, and the intent is that the reverse engineers actually can develop the mental model of the architecture or the design of the legacy application that is under reverse engineering. Traditional architecture of reverse engineering environment was made of extraction, repository, and tools, and these are the similar phases that we have discussed in reverse engineering process models. And here just the name are different. You will see them in later on slides. Most tools are developed on parse-based and lexical-based techniques. That's also the fact, and we have studied in lecture number 2 about the parse-based and the lexical-based techniques. So same techniques are followed by most of reverse engineering tools. The tool architecture must provide functionality to extract, abstract, and present the software system artifacts to support extraction, abstraction, and presentation of the recovery of desired artifact. You know about these phases, and these are the keys, and we always will be discussing about these phases because they are the part of the process models, and definitely every reverse engineering tool follow these phases. Here we discuss again the key attributes of reverse engineering tools being applied by different tool developers. RE tools are developed with number of features to support different methodologies according to the requirement of customers or the reverse engineers. There may be number of features, and they actually vary according to the requirement of reverse engineers. RE tools must have following attributes. ये बड़े जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हैं, और इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको भी नॉलेज है. कोई भी टूल डेवलपर जब कोई टूल जो है वो डेवलप करता है तो उसमें नेचुरली ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको वो एक्सपेक्ट जो है वो कर रहा होता है, जिसमें टूल की फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबल आपका टूल जो है
होना चाहिए। और इसी तरह आपका जो टूल है उसके अंदर एक्सटेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके टूल को एज ए एड इन के तौर पर, ई क्लिप के तौर पर आगे जो है वो कम्युनिटी के पास जो है वो ऑप्शन होना चाहिए कि वो उस टूल को आगे जो है वो एक्सटेंड जो है वो कर सकें। और इसी तरह स्केलेबिलिटी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज डिस्कस अबाउट इट, कि आपके टूल के अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो जरूर होनी चाहिए कि वो स्मॉल स्केल के भी डाटा सेट पे परफॉर्म कर रहा है जिस एक्यूरेसी के साथ, उसी एक्यूरेसी के साथ जो है अगर लार्ज जो है वो डाटा सेट आता है तो उस पे भी सेम एक्यूरेसी के साथ वो टूल जो है वो परफॉर्म कर रहा हो। तो इसी तरह और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और ये बड़े जेनेरिक हैं, तो इन पे मजीद डिटेल की जरूरत जो है वो नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा उसने आगे जो है वो एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है, ये जस्ट पॉइंट मैं रीड ही जो है वो करूंगा और कोई ज्यादा इसके ऊपर और डिटेल की जरूरत आपको जो है वो नहीं होगी। टूल शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ to support various activities such as artifact specification, उनको स्पेसिफाई आप कर सकें। आर्टिफैक्ट्स की मैपिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन है, अब्स्ट्रक्शन है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इन पे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अब। इसी तरह टूल शुड अलाउ यूजर्स टू स्पेसिफाई आर्टिफैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनर्स, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक की जो है वो एलिमेंट है कि यूजर के पास जो है वो चॉइस होना चाहिए। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि उसमें यूजर के पास चॉइस नहीं रहता, जो आपने इनपुट दी उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी और यूजर की उसके अंदर कोई इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगी। तो टूल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो उस वक्त फुलफिल जो है वो करता है जिसमें यूजर अपनी उसके अंदर कोई भी जो है वो इनपुट जब टूल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको वो एड अप जो है वो कर सके। तो थ्रू मैपिंग टूल्स कैन लिमिट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्कोप बाय इंप्रूविंग द एक्सट्रैक्शन परफॉर्मेंस। ये वही फेजेस की वो बात जब वो कर रहा है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है उसमें मैपिंग की जो है वो सपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। ये भी हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल्स हैं उनके अंदर। इसी तरह एक्सट्रैक्शन, अब्स्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन फीचर शुड बी फ्लेक्सिबल इन द टूल। तो ये इटसेल्फ जो फेजेस हैं अगेन उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है होनी चाहिए। इसी तरह extensibility is very clear from its name. RE tools for different types of tasks requires that a user can extend the system functionality by adding different tools and scripts in extraction and abstraction components. That's very clear and already we discussed कि आपके टूल के अंदर ये ability जो है वो होनी चाहिए कि उसको यूजर के पास चॉइस जो है वो हो कि वो एक्सटेंड कर सके। लेकिन आपने भी देखा होगा कि हर टूल के अंदर ये फीचर जो है ये नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में आप जो है वो देखेंगे कि ये टूल डेवलपर्स ये जो फीचर है अपने टूल्स जो है उनकी आगे मार्केट वैल्यू के लिए जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड जो है वो करेंगे। टूल शुड सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ एड-इन्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनके अंदर आप अपना कोई एड इन जो है वो बना लें, उसकी बहुत सारी बिल्ट इन फीचर्स को आप जो है वो यूज करें और प्लस उसके अंदर आप अपनी एक्सटेंशन जो है वो एड इन के तौर पर उसमें जैसे जो है वो ऐड कर दें। तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आरई का होगा उसमें आपने ये एड इन जो है वो बनाना है। जो टूल हम सिलेक्ट करेंगे उसमें आप एक अपना एड जो है बनाएंगे और बाकी जो टूल्स की एग्जिस्टिंग फीचर्स होंगी उनको आप जो है वो यूज करेंगे। तो इस पे हम अगले लेक्चर्स के अंदर मजीद जो है वो डिटेल में बात करेंगे कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है वो किस टूल के साथ अपना एड इन जो है बनाना है। इसी तरह थर्ड जो फीचर है सर आपकी आवाज जो लास्ट बात आपने की आपकी आवाज कट रही थी, आप दोबारा बता दें। किस पॉइंट पे बेटा बात कर रही हैं? सर ये जो भी आपने प्रोजेक्ट